So once again, I welcome all of you in class 11th. Better you know that how much well you prepared and studied in your grade 10th and in fact in ninth as well. But at the same time, it is very important and essential to note that class 11 mathematics require many of the concepts you already have studied in your previous classes, especially in ninth and 10th. So please revisit and revise most of the important topics and concepts. It will really help you to understand many of the concepts which we are going to start now. In school syllabus, at least first 5 chapters we will be taking in continuation. Today I am going to start with chapter 1, sets, then followed by relation functions, then trigonometry, then principle of mathematical induction, followed by complex number and quadratic equations. So first 5 will be followed in a simple row. Then there might be certain changes. You will be informed accordingly well in advance. Your UT1 will be starting from 15th of July. So you have more than 1 month. You are already informed. And in your UT, you will be getting chapter number 1 and chapter number 2, means sets and then relations and functions. As already informed via one message which I already shared in our group, 60% of the paper will be coming directly from your NCERT textbook questions, and the remaining 40% will be based on the assignments and the different kind of questions which I will be sharing during my class. Assignments will be shared via your Google Classroom, and a link will be created to upload your PDF of registers chapter wise, or even chapter 1 NCERT and then chapter 1 assignment. Because you remember, you must be aware that in grade 10th and 12th your assessment was done majority in basis of internal assessment, right? So we do not know when the schools will open physically, maybe after 3 months, maybe after 4 months, or maybe this whole session may go on online only. So in that case, your whole assessment will be totally depending not only on the written test, it will be based on your internal assessment. So it is very, very important for you to understand this carefully. We need authentic proofs that yes, student has submitted their work, assignments, whatever was assigned on time. So whenever some assignment is given, whenever link is created and shared with you, do upload your work before the due date. So second thing, you need to maintain one maths register as already informed. If you want, and it's optional, you can also maintain two different maths register. Second one for your maths assignments. Do remember 40% of the paper UT ho ya midterm or final term will be from the assignments. Few of the questions are related to directly NCERT problems, just that 10 ka 20 hua, something like that. But in other questions, they may be of higher level or difficulty. Some of the concepts, even they are not given in NCERT textbook. So subtopics, but which are very, very important and relevant. I'm sure every one of you will be appearing for one or the another entrance test after class 12. So NCERT definitely is not sufficient for the same for preparation. That's why we include some different subtopics which are essentially needed and required. So even if you are bright, if you are doing whole NCERT rectification, सब कुछ समझकर भी कर लिया, but that guarantees only 60 to 70% of marks. Remaining will be via your questions जो आप attempt करेंगे from assignments. So take assignments very, very seriously. रिपीटेडली मैं डे 1 से आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, सो दैट यू शुड नॉट सफ़र एट द एंड कि वो एनसीईआरटी या कंसेप्ट तो सब आते हैं बट स्टिल पेपर में पता नहीं कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया वो 40% असाइनमेंट्स के क्वेश्चन से ही रहने वाला है. असाइनमेंट्स आर ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे, जैसे चैप्टर 1 की असाइनमेंट आपको मैं भेजूंगा, उसमें पहले मान लो 20 क्वेश्चंस आ गए या 25 आ गए, फॉलोड बाय लिखा होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे. In examination, we will not be asking questions from those HOTS based questions at least. They are only optional
for those students who really want to do much better in mathematics. So in case if you find any difficulty, any doubt, you can always click the photograph and share in the WhatsApp group created specially for mathematics. Maybe possibly I will see your doubt after an hour or so, and some another students see that doubt and he or she knows the answer. I suggest you may have the interaction in that way. You can share the answer if you know that. If you have any doubt, any query, you can always ask. Here is option when you check out in your Google Meet, hand raise option is there. Of course, you can always unmute yourself and ask your doubt. You are quite enough mature that it is not like it's a grade second or third when a teacher is going physically to each seat and ensuring that student is learning or student is not learning. It is your responsibility that in case if not, something is not clear to you, please come forward, ask your doubts and get them clarified. If you accumulate your problems and doubts day by day, at the end of the day you will left with nothing except only doubts in that chapter, and I will start with the next chapter. So that will not serve any purpose. But yes, there are the deadlines, there is a restriction of time. Everyone is having that 24 hours, do remember that. So there are the toppers जो आप ही की क्लास में से होंगे और आप ही की क्लास में कम मार्क्स भी लेने वाले होंगे, बट टाइम मैनेजमेंट आपको करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल वन नीड टू अंडरस्टैंड. एंड जब हम मैथ्स की बात करते हैं 11th क्लास स्पेसिफिकली, सिलेबस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इफ आई कंपेयर विद ग्रेड 10th. तो और डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इफ़ यू आर रियली फोकस्ड and take interest in it. And the key to success and that mantra is simple: practice, practice and practice. More you practice, more you understand, more marks for sure. And remember, 50 to 60% of the concepts which we will be studying in grade 11, they will be carry forward and used in class 12. Even in class 12, class 6th, class 7th basic concept might be used. I have seen number of students even in class 12, those who are not able to take the proper LCM or apply splitting the middle term or say factor theorem, division of two polynomials, finding out the square root, because these methods we studied in grade 9th or 8th, but they might be required even in class 12. So I, as a teacher, cannot teach everything which you already have covered in your previous classes. So therefore, it is your duty to understand and do not commit any silly mistakes. Most of the time, students or parents, whenever they come in PTM, they used to say, silly mistake बच्चा करता है या हो जाती है. But there is no way out. अगर आपका पहला ही स्टेप गलत हो गया just because of a silly mistake, LCM लेना है, वो प्लस माइनस का छोटी सी गलती कर दी, डेफिनेटली द होल क्वेश्चन आगे वाले स्टेप्स तो सारे गलत हो जाएंगे. तो देयर इज अ प्रॉपर एल्गोरिथम, प्रॉपर स्ट्रक्चरल स्टेप्स होते हैं मैथ्स में. तो आपका अगर पहला स्टेप गलत तो आगे तो सब कुछ खत्म गलत हो जाएगा. सो डू रिमेंबर दैट फर्स्ट थिंग, सिली मिस्टेक नहीं होनी है. रिविजिट एंड रिवाइज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बी वेरी फोकस्ड, अलर्ट, अटेंटिव इन अ क्लासरूम एज यू आर अटेंडिंग अ फिजिकल क्लास. तो अगर आप बिल्कुल अपना इसको अनअटेंटिव मोड में क्लास ज्वाइन कर लिया बट यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट हेयर, लेट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हु विल बी द सफरर? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. So with that, I'll start with now chapter number 1, set theory. All the best to all of you. Already mentioned, you can always use the option of raise hand or you can always unmute and ask your doubt. The basic introduction to the sets, it's a fundamental concept and used in even present day mathematics, other very different fields and branches of mathematics, specifically relations and functions, which will be our chapter number 2, and it's also used in geometry, sequence series, probability, highly used. The theory of set was developed by the German mathematician
George Cantor around 90 years back. He discovered and talked about this idea of set theory, which is even used till today. So sets, what are these sets? I'm going to define that along with their representation. I'm sure my screen is visible. So a well-defined, this is a very important keyword here. Well-defined collection of objects is known as sets. And the objects which are present, they are referred to as the elements or member or the points. We generally use the term elements. Sets are always denoted by capital alphabets like A, B, C, X, Y, Z and so on. अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? पहले ये चीज देखिए कि अगर मैंने कहा A इज एनी एलिमेंट, तो वही राइट A belongs to A, and this is the notation you need to understand. Belongs to थोड़ा ई की तरह लगा है कि लिखा है, but this is थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ये इस तरह से बनाना आना चाहिए. तो एलिमेंट A belongs to set A, और अगर बिलोंग नहीं करता तब हम ये लिख देते हैं, बिलोंग के ऊपर क्रॉस लगा दिया लाइक दिस, सो नॉट बिलोंग्स. Some examples of these sets of the numbers 1, 3, 5, 7, 9 and so on. So this is the random collection of the numbers, but sets are always represented in two different ways. I will come to that, but अभी के लिए सिर्फ इतना देख लीजिए. It is always better to write the sets in the following form, in the form of certain braces. Then the set of vowels in the English alphabet, I can write that set as A, E, I, O, U. कॉमा लगा दिया बीच में, और ये ब्रेसेस, ये ब्रैकेट्स ये वाले यूज कर लिए. इनकी भी अलग अलग आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे ड्रॉ करते हैं. देन सर्टेन सेट्स के एग्जांपल में क्विकली देख सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, set of all planets, set of all points on a circle, collection of all maths books in your library. So these are the real life example. अब थोड़ा मैथ्स से स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा देखें, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. तो चेक करिए, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर को मैं ए से डिनोट कर देता हूं, तो दिस इज बेसिकली 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. एंड सो ऑन का मतलब एक तो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइटली मैनी, इन्फिनाइट तक जा रहा है. और ये 3 डॉट्स जो लगाते हैं ना, इसे मैथमेटिकल टर्म दी गई है इलिप्सिस. जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम टेलिंग यू. एग्जाम में ऑफ कोर्स कोई ये नहीं पूछ रहा है, इलिप्सिस. फिर सेट ऑफ से मल्टीपल्स ऑफ 4. तो मल्टीपल्स ऑफ 4 का सेट मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको चलो बी अगर कह दूं, तो 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन. ना यहाँ जो सो ऑन लगा है, इसका मतलब हम बाद में वैसे डिफाइन करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स. तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट कंटेनिंग इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स. और अगर मैं 9th पार्ट देखूं, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, तो आप चेक करिए, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 को डिवाइड करने वाले आपको पता है यही फैक्टर्स होंगे, फाइनाइट इन नंबर. तो फाइनाइट इन नंबर है, तो हम इसको धीरे धीरे डिफाइन करेंगे एज अ फाइनाइट सेट. यहां तक अगर किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, ये तो मैंने बता दिया कि सेट क्या होते हैं. अब
एक बार बात कर लेते हैं कि सेट क्या नहीं होते हैं। तो वो नॉट वेल डिफाइंड की बात हो रही है। नॉट वेल डिफाइंड एग्जाम्पल, all good cricket players of your school, or say even the best player of Indian cricket team. So there is no fixed criteria how you are going to define it. All big cities in the India, yeah, all lovely flowers. Five most renowned scientists of the world, मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट अगर हम ऐसे कहते हैं, सो यहाँ कुछ एडजेक्टिव्स इन्वॉल्व हुए हैं विच आर नॉट वेल डिफाइंड। सो ये एम्बिग्विटी आ रही है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स हैं, इसीलिए ये सेट्स नहीं है। चेक आउट एग्जाम्पल वंस अगेन। अब हम बात करेंगे सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स की। बेसिक आइडिया आपको क्लियर है, एक बार ये पढ़कर देखिए। आई एम वेटिंग। सो आई होप द आइडिया इज क्लियर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये फिक्स नोटेशन है। सो एन क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू, एंड इसमें जीरो बस एक एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ही चलते हैं। इंटीजर्स आई और जेड लिखा है, बट वी विल प्रेफर टू यूज जेड ओनली फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। तो इंटीजर्स विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। आई क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है आई से एज एन इर्रेशनल नंबर्स। फर्दर देखिए रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर भी हम आर की जगह क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि आर जो है वो एक्चुअली रियल नंबर्स के लिए नोटेशन फिक्स है। तो ये भी बहुत ध्यान से याद करिए कि जब मैं रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके रैशनल नंबर्स के। सो दिस इज द कलेक्शन डिनोटेड बाय q। पहले देख लो नीचे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो एक्सप्रेस नहीं करे जा सके p बाई क्यू की फॉर्म में, और ये नोटेशन थोड़ा याद करना रहेगा कि t इज द नोटेशन जो मैथमेटिशियंस ने फिक्स करा है फॉर इर्रेशनल नंबर्स। सर्टेन एग्जांपल्स √2, √3 या पाई हो गया, या से माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5, दे आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 10th में ही और इवन थोड़ा 9th में भी, सेट ऑफ रैशनल प्लस इर्रेशनल वो हो जाते हैं रियल नंबर्स। तो टिल 10th इन आवर सिलेबस हमने सिर्फ रियल नंबर्स तक स्टडी करा हुआ है। फिर आपके पास नीचे बस देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल होते हैं क्यू, और क्योंकि पॉजिटिव रैशनल कहा है तो क्यू के साथ ये छोटा सा ऊपर सबस्क्रिप्ट प्लस लगा दिया। ऐसे ही पॉजिटिव में अगर मुझे रियल चाहिए तो रियल नंबर और पॉजिटिव है तो आर के ऊपर छोटा प्लस। नेगेटिव रियल नंबर ये हो जाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर क्यू माइनस हो जाएगा। सो वी कैन हैव द सिमिलर नोटेशंस।
Any doubt till this step? No, sir. No, sir. Okay. अब हम मेन बात स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। कैसे हम एक सेट को डिपिक्ट करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज नॉन एज अ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन सिंपल हम रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। And we will be very soon learn their representation and mutually रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे लिखेंगे, दैट ऑल्सो वी विल लर्न। सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, रोस्टर फॉर्म। सो व्हाट एग्जैक्टली इन दिस मेथड वी डू, लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट, दैट्स इट। और उन्हें ब्रेसेस के अंदर लगा देते हैं और बीच में कॉमा लगा देते हैं। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल, a set of all natural numbers which divides 42। बेसिकली हम 42 के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है 42 के फैक्टर्स 1 2 3 6 7 14 21 42 ये होंगे। बस ये सारे लिख लिए और उन्हें आपने इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। Let us consider few more examples already discussed. Set of odd natural numbers 1 3 5 and so on. अब सेट को मैंने कहा ना ABC लिखो या XYZ लिखो या कुछ भी, इन्होंने L से डिनोट कर दिया है सेट को। वो क्या है? लेटर्स ऑफ द वर्ड जोधपुर। तो बस आपने जोधपुर के अंदर सारे यूनिक ही थे लेटर्स, तो आपने सारे लेटर्स को सेपरेट कॉमा से करके लिख दिया। इफ देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ एनी लेटर, we write that only once. I will come to that concept. This is the most important form जो हम जनरली यूज करने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस केस में हम देखो क्या करते हैं, we list the property or properties satisfied by the all elements of a set। और जर्नल प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, दैट विल वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। चेक दिस फर्स्ट एग्जांपल। एक सेट एस लिखा है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। चेक दिस आउट, ये वाला सेट जो है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म। और अब हम चाहते हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज दिस, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। वाई वन ऑफ द पॉसिबिलिटी? क्योंकि इसके अलावा मैं और क्या इसी को लिख सकता था, बहुत ध्यान से समझना। और सेट एस क्या है, एलिमेंट्स देखो 1 4 9, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर ही तो है। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, ये सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब आगे क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक्स किस फॉर्म में है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर वेयर n belongs to natural number n. This is the set builder form. Excuse me, sir. Yes. Sir, can we write integers because square of -1 is also 1? यहां पर आपको, अच्छा उस फॉर्म में आप कह रहे हैं
ओके -1, ठीक है, बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ हो सकता है पॉसिबल, यस यू कैन डू, क्योंकि n अगर आपके पास -1 भी है, ऑफ कोर्स -1 का स्क्वायर भी 1 दे रहा है, -2 का स्क्वायर वो आपको 4 एंड सो ऑन, सो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओवर हेयर, राइट। Okay, sir. Thank you, sir. Next example, check this out. सेट ए अब क्या डिफाइन करा है, सेट ए इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। तो बस देखो यहां तो इन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया कि चलिए कि सेट बिल्डर में मैंने ये लिख दिया, बट एक्चुअल में आप और कोई वे है इसको लिखने का, सोच के देखिए। सेट ए क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 का मल्टीपल है, एन एक नेचुरल नंबर है, बट अब की बार एन जो है वो होगा लेस देन और इक्वल टू 15. सोच के बताओ, सोचो जरा ध्यान से। 15. Anyone? Sir, 14. It's 7। 14. अब देखो जरा लेस देन 15 में इवन नंबर कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये तो आपका रोस्टर फॉर्म थी, बट आप चेक करो मैंने कलेक्शन एक्स किस फॉर्म में लिया है, 2n, तो अगर n को मैं 7 रख दूंगा, n इज 7, तब x आ जाएगा 14, तो लास्ट एलिमेंट लिखा जाएगा when n is 7, and I'm sure everyone knows the meaning of this, लेस देन या इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू। सो प्लीज फोकस ऑन दी नोटेशंस, जिस वे में मैं ये लिख के दिखा रहा हूं, इस तरह से आपको समझना है। अ क्वेश्चन फॉर यू, आई एम वेटिंग, प्लीज ट्राई दिस आउट। Write the solution set of the following equation। तो पहली बात, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होगा, Plus 2x minus x. या एंड फिर ये -2, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आई बिलीव एवरी वन कैन डू इट, और ये -1 कॉमन, so x -1 into x plus 2 is 0, and this gives x as 1 or -2, बट अब आपको सेट थ्योरी की नोटेशन में लिखना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज से सेट ए, और वो क्या है 1 एंड -2, ब्रैकेट्स में लिख दिया, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आपसे रोस्टर फॉर्म में ही कहा था, हम हर एक आंसर को और हर एक सॉल्यूशन को शायद सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आई विल कम टू दैट ऑल्सो, check this out। राइट दिस सेट क्या है आपकी बात, So 1 2 3 4 5 6. ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स को डिफाइन कर दिया है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाता है,
बट क्योंकि साथ में कंडीशन दिया है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर मस्ट बी लेस देन 40, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2, 3 स्क्वायर होता है 9, एंड करते करते आइडिया लग जाता है ना, 6 का स्क्वायर हुआ 36, वो भी आंसर में आएगा, बट 7 स्क्वायर हो गया 49, which is not less than 40. So this is your required answer in the roster form. Any doubt to anyone? You can always ask. No, sir. Check this out. Write this set in the set builder form. Sir, Observation. x is equals to Two. n by n plus 1, N where plus n 1. belongs where X. n belongs to natural number. Okay. N upon N plus n 1. plus 1. N plus 1. आइडेंटिफाई करा, बट अब n के लिए क्या क्या लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर N is equal to less than 7. लेस Less देन, than equal to यस, 7. चलो दो वे थे, ये लिख दो या सीधा कह दो n इज लेस देन 7, तब भी ये लास्ट 6 आएगा यहाँ पर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये ऑब्जर्वेशन है कि ऊपर आपके पास जो जा रहे थे इन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6, तो वो तो सिंपल नेचुरल नंबर n जा रहा था, उसकी सीक्वेंस थी। उसी के नीचे मैंने देखा तो वो 2 3 4 5 6 7 एक एक एक्स्ट्रा हो गया, तो n प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सो ये विद प्रैक्टिस ही आपको और बेटर क्लियर होगा। चेक दिस आउट। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब क्या हो जाएगा, So 2, 4, 6, 8, 10. यस, x है 2n की फॉर्म में, n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 तक जा सकता है, तो n को जब आपने 1 रखा 2 आ गया, 2 रखते ही 4 एंड सो ऑन, योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको रिवर्स में भी सोचना आना चाहिए। क्या मतलब, अगर आपको ये दिया होता और फिर आपसे कहा जाता कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, तब ये आंसर हो जाता, कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। तो वन नीड टू अंडरस्टैंड इन बोथ द वेज। चेक आउट दिस क्वेश्चन। n होल नंबर, n 0 1 2 3 4 तक जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ लेस देन 5 कहा था। बता दो व्हाट इज द आंसर। So 0, 3, हाँ, 5. नो, n को जब 0 रखा तो पहला टर्म 1 आएगी, फिर n को 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 एंड देन 4 रखा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, check out this question. सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्या होती है, ये जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ x का मतलब क्या हो जाता है, दिस इज x
whenever x positive, and this is minus x whenever x is negative. और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है, आप इनपुट कुछ भी करो, कोई भी नंबर, आउटपुट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. इनपुट एनी नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, आउटपुट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर ही गया है तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा. सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर मेकिंग इट क्लियर. Answer will be always positive. This is known as modulus function. तो हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. तो बेसिक आइडिया अगर क्लियर है, So minus 2 Minus 2, minus 1, 0, minus 1, 1 2. 2. यस, गुड. चेक दिस आउट. अगर लॉजिक क्लियर हो गया, वन कैन आंसर इट डायरेक्टली. वो सारी वैल्यूज ऑफ x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं. तो आप खुद सोच के देखिए, -2 रखूंगा अगर x की जगह, तो वो आंसर तो 2 ही आएगा. एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इसलिए ये मेरे सॉल्यूशन में आ गया. सिमिलरली -1, 0 को भूल मत जाना. ये सारे वैल्यूज जो लिखी गई हैं, दे ऑल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. वी हैव द नेक्स्ट पीरियड ऑल्सो, वो भी मैथ्स का ही है, एंड वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू इन दैट. उसमें मैं थोड़ा सा स्लो और हो जाऊंगा कुछ क्वेश्चंस को लेते हुए, बट वी विल कंटिन्यू. सर यस, सर जो अभी आपने क्वेश्चंस कराए ये हमको फेयर में साथ साथ ही करने हैं ना, और जो डेफिनेशंस थी बाकी वो अभी नोट डाउन नहीं हो पाई थी जो आपने पहले कराई थी सेट. see, I am going to share this whole presentation in the form of PDF. तो इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस अभी ही कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा फोकस उस पर हो. अभी आप मैथ्स रजिस्टर में या रफ वर्क में हल्का हल्का जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उतना पार्ट कर लिया. एंड वंस दिस प्रेजेंटेशन इज शेयर्ड विद यू, उसके बाद आप उसे अपना कॉपी में थोड़ा प्रॉपर वे में कर लेंगे, ताकि थोड़ी डेफिनेशंस लिख लिया, फिर 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल मैंने लिए मान लो, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आ जाएगी. तो वो सब चीज़ें आपको बाद में करना है, अभी फेयर वर्क या उसमें टाइम वेस्ट मत करना. बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन, along with that homework will be shared with you in the form of image. Along with that the video recording will be shared later on. वो भी मैं शेयर करता हूं, पर वो थोड़ा सा डिलेड होता है. Check out this question. बस ये क्वेश्चन और लेंगे अभी के पीरियड में, फिर ब्रेक है आपका. थिंक लॉजिकली. Set builder. सर Yes. x is equals to n by X is equal to n by So n square plus 1. n square plus 1. n square plus 1. Check it out. ये 5 2 square plus 1 है, ये 3 square plus 1 है, 4 square plus 1. तो ये ऑब्जर्वेशन रहा. n नेचुरल नंबर है with n less than or equal to 7. That was your required answer. तो वो स्क्वायर कहाँ से आ गए, ये आपकी सिंपल ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं. राइट. सिमिलरली यू कैन हैव द आंसर्स टू द फ्यू मोर क्वेश्चंस. जितना मैंने आज आपको अभी इस क्लास में करवाया है, उस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है. I will discuss only few questions now from 1.1, क्योंकि you will find most of the questions are already covered via some different questions. So बस ये 1.1 जो है ये कंपाइल करके मैं आपको दे रहा हूँ, so ये आपके होमवर्क में आ जाएगी. तो 6 क्वेश्चंस हैं
1.1 के। और इसके अलावा असाइनमेंट में से ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस का कंसेप्ट अभी तक हुआ है, इनमें से 2-3 क्वेश्चंस तो मैं करवा ही चुका हूं। सो वी विल मीट आफ्टर 10 minutes. You can leave the meeting. I'm ending this class. Yeah, but join after 10 minutes. Syllabus continue होगा.